প্রতিবেদনে আমি মূলত দুটি বিষয় তুলে ধরব। নাম্বার ওয়ান, কলকাতার বুকে সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে এদিন সমস্ত সাংবাদিকরা একজোট হয়ে পথে নেমেছিল। নাম্বার টু, দিল্লিতে ফের নতুন করে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টি। তাদের বক্তব্য, ধর্মেন্দ্র প্রধান শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ দিলেও আরও দুটি শর্ত ছিল, মধ্যে একটি শর্ত এখনো মানেনি কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রশাসন। দুটি নিয়েই আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। আমি প্রথম পর্বটা আগে বলে নিই, সেটা হলো কলকাতার বুকে সাংবাদিক নিগ্রহ, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। মতবিরোধ, মতানৈক্য, পার্সিয়ালিটি, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু কোনো সাংবাদিকের ওপর নিগ্রহ সভ্য সমাজে ঘটতে পারে না। কিন্তু ওই যে বললাম দুর্ভাগ্য, সম্প্রতি কিছু অসভ্য সেই কাণ্ডটাই ঘটিয়েছে, সেটাও আবার আমাদের শহর কলকাতার বুকে। এর আমরা চরম বিরোধিতা করি এবং তারই প্রতিবাদে এদিন নজিরবিহীনভাবে কলকাতার বুকে সাংবাদিকরা একজোট হয়ে প্রতিবাদ দেখিয়েছে। আমি প্রথমে কিছু ছবি দেখিয়ে নিই, তারপর প্রেক্ষাপটে আসছি। সাংবাদিক নিগ্রহ মানছি না, মানব না। 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 মানছি না, মানব না। ওরা যত মারবে তত মারবে। তোমরা যত মারবে, তোমরা যত মারবে, সাংবাদিক নিগ্রহ মানছি না, মানব না। ভয় পেও না, 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 ভয় পেও না। ওরা যত মারবে, ওরা যত মারবে, আপনারা দেখলেন, এই ছবি কি আমরা দেখতে চেয়েছিলাম? না, দেখতে চাইনি। কিন্তু এছাড়া হয়তো কোনো উপায় ছিল না, যেখানে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের, চিত্র সাংবাদিকদের পথে নামতে হলো। কারণ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সাংবাদিকরাই আক্রান্ত হচ্ছে। এই প্রতিবাদে আমারও সামিল হওয়ার ইচ্ছা ছিল, কারণ দীর্ঘদিন মেইন স্ট্রিম মিডিয়া, নিউজ পেপারে কাজ করেছি এবং বেশ কয়েক বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতেও কাজ করছি। শুনুন, ওখানে যারা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই আমার সতীর্থ, একসাথে কাজ করেছি। অনেকের সাথে একসাথে কাজ না করলেও ফিল্ডে দেখা হয়েছে, একসাথে আড্ডা মেরেছি, গল্প করেছি, হই হই করে কাজ করেছি। এক একটা মিডিয়া হাউসের এক এক রকম পলিসি। সেই পলিসিটা আমাদের মতো ফিল্ডে কাজ করা সাংবাদিকরা ঠিক করে না, সেই পলিসিটা ঠিক করে সেই নিউজ হাউসের যারা এডিটোরিয়াল বা যারা মালিক, তাদের মর্জিতেই কিন্তু ফিল্ড সাংবাদিকদের কাজ করতে হয়। কারণ দিনের শেষে আমরা কিন্তু বেতনভুক। এই প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আমিও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, কিন্তু হঠাৎই পারিবারিক একটি কারণে আমার আর ধর্মতলা পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। তবে এই প্রতিবাদে আমার 100% সমর্থন আছে। কেন আছে বলি। ধরুন, কোনো সংবাদ মাধ্যম, সেটা সো কল্ড কোড আনকোড গদি মিডিয়া হোক, দিদি মিডিয়া হোক কিংবা মোদি মিডিয়া হোক, একজন সাংবাদিক তার হাউস বা এডিটোরিয়াল পলিসির ওপর নির্ভর করে সংবাদ পরিবেশন করে, সেটাই তার কাজ। এটা হলো 1 নম্বর। 2 নম্বর, যদি কোনো দর্শক বা পাঠকের মনে হয় এই সংবাদ মাধ্যমের খবর নিরপেক্ষ নয়, প্রথম কথা, নিরপেক্ষতার বিষয়টি আমি বিশ্বাস করি না, কারণ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কিছু হয় না। যাই হোক, কারোর যদি মনে হয় এই সংবাদ মাধ্যম পার্সিয়াল, এই সংবাদ মাধ্যম কোনো একটি পক্ষ নিচ্ছে, আপনি তাকে বয়কট করুন, আপনি সেটা দেখবেন না। আরও অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে যেটা আপনার পছন্দের, সেগুলো দেখুন, ঝামেলা ফুরিয়ে গেল। কিন্তু আমাদের কারোর কোনো অধিকার নেই, কোনো সাংবাদিক, সংবাদ মাধ্যমের কর্মী
চিত্র সাংবাদিক তাদেরকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করার। কারণ মনে রাখবেন, সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা কোনো অন্য গ্রহ থেকে আসে না, আমার আপনার পরিবারেরই সদস্য। তারা পেশার তাগিদে খবর করতে যায়, তাদের হাউস পলিসি অনুযায়ী, তাদের এডিটোরিয়াল অনুযায়ী। আপনার যদি মনে হয় আপনি দেখবেন, যদি ভালো না লাগে দেখবেন না, কিন্তু আপনাকে কেউ অধিকার দেয়নি সেই সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের নিগ্রহ এবং শারীরিক নিগ্রহ করা। তর্ক বিতর্ক থাকতে পারে, আপনি সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু কলকাতার বুকে সেদিন মহিলা সাংবাদিকরা যেভাবে নিগৃহীত হয়েছে, এটা কোনো সভ্য সমাজে ঘটতে পারে না। কিছু পুরুষ সাংবাদিক, আমার সহকর্মীরা, সেদিন এতটাই আক্রান্ত ছিলেন তাদেরকে হসপিটালাইজ করতে হয়। এবং এমন আরও অনেকে আছে আমি জানি, যারা কিন্তু অল্প আধটু চোট পেয়ে তারা কিন্তু হসপিটালে ভর্তি না হয় বাড়িতেও চলে যায়। এই ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমি বারবার বলছি, কোনো সংবাদ মাধ্যমের খবর আপনার আমার পছন্দ নাই হতে পারে, কিন্তু শারীরিকভাবে নিগ্রহ এটা মেনে নেওয়া যায় না এবং যথারীতি তার প্রতিবাদ হবে, যেটা আজকের কলকাতার বুকে হয়েছে। এমন ঘটনা না ঘটলেই হতো, কিন্তু সাংবাদিকদেরও নিগৃহীত হওয়ারও একটা সীমা আছে। যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, যখন দেয়ালে ফিটটা ঠেকে যায়, তখন এরকম প্রতিবাদেই সামিল হতে হয়। তাই আমি আশা করব ভবিষ্যতে এমন কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে, যাতে ফের একবার সাংবাদিকদের একত্রিত হয়ে এভাবে শহর কলকাতার বুকে প্রতিবাদে নামতে হয়। দর্শক বন্ধুরা, এবারে আমি আসব এই প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বে। আপনারা জানেন, ককরোচ জনতা পার্টি সিজেপির আন্দোলনের ঝাঁজে কার্যত পিছু হটেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারি নিয়ে দিল্লি সহ গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে জেনজি ককরোচদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল, তাতে পিছু হটে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রসাদকে অবশেষে ইস্তফা দিতে হয়। কিন্তু আন্দোলনকারীদের আরও দুটি শর্ত ছিল। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী, সেটা শুধু দিল্লি নয়, ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তে, সেই আন্দোলনকারীদের ওপর যেন সরকার আগামী দিনে দমন পীড়ন না চালায়, তাদেরকে যেন কোনো মামলায় গ্রেপ্তার করা না হয়। কিন্তু তাদের দাবি, তাদের সেই শর্ত এখনো মানা হয়নি। তাদের কাছে নাকি খবর আছে এমন অনেক আন্দোলনকারীদের ওপর কোড আনকোড পুলিশি সন্ত্রাস নেমে আসছে, এফআইআর হচ্ছে, গ্রেপ্তার করা হতে পারে, এমন অনেক আশঙ্কা তারা করছেন। এবং সেই জায়গা থেকে এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বলকে পাশে বসিয়ে একটি প্রেস কনফারেন্স করেছে। অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং এই প্রেস কনফারেন্স। এবং সেই প্রেস কনফারেন্স থেকে তারা যেমন একটি ওয়েবসাইট খুলছে, যে ওয়েবসাইটে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার আইনজীবীরা এই আন্দোলনকারীদের পাশে জানানোর জন্য সেই ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে পারেন। একই সঙ্গে তাদের আরও একটি অভিযোগ, অনেক পুলিশ কর্মী নাকি তাদের উপর নির্যাতন করেছিল। তেমন কোনো ভিডিও ফুটেজ থাকলে সেই ওয়েবসাইটে আপনারা আপলোড করুন। এর পাশাপাশি কপিল সিব্বল 1 কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে একটি লিগ্যাল সেল খোলার জন্য, যেটা শুধুমাত্র এই মামলা মোকদ্দমার জন্যই খরচা হবে। এর পাশাপাশি ককরোচ জনতা পার্টির ফের হুঁশিয়ারি, আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে, অর্থাৎ আগামীকালের মধ্যে যদি যাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে সেই কপি তাদের হাতে না আসে, অথবা এফআইআরগুলি খারিজ করা না হয়, তাহলে তারা কিন্তু নতুনভাবে আন্দোলনে নামতে চলেছে। দেখুন এদিন দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির নতুন হুঁশিয়ারি নিয়ে প্রেস কনফারেন্স। 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने हमारे प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया था, ये कंडीशन में कि हमारे जो सारे मुख्य मांगे थे, सरकार ने उस पे या तो उन्होंने एक्ट किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया, या तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एग्रीड अपॉन टाइमलाइंस के अंदर वो उस पे अमल करेंगे। उस गुड फेथ में हम लोगों ने 25 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट जंतर मंतर से एंड जो नेशन वाइड कॉल हम लोगों ने दिया था दूसरे चीजों के लिए, उन सब चीजों को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया। उसके पहले एंड उसके बाद भी हम लोग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर से कंसल्ट कर रहे थे, उनसे लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था एंड काफी सारे मुद्दों पे हमारा चर्चा हुआ था। क्योंकि आपको पता है बीच बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ PILs फाइल किए थे जो थोड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे। हम ये चाहते थे कि हमारा ये जो युवाओं का मूवमेंट है, ये किसी भी तरीके से ये डिरेल ना हो। वो भले ही रोड में कुछ असामाजिक तत्व घुसा के जैसे डिरेल करने का कोशिश किया था उससे, या कोर्ट को यूज करके एक तरीके से
ये मूवमेंट को डिरेल ना किया जाए, वो हमारा प्रयास था। तो हम लोग कपिल जी के साथ कांस्टेंट टच में थे एंड लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था। जब 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट, हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो जाए या थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए, उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। एंड ये बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। तो इसी आशंका पे हम लोगों ने कपिल जी से गाइडेंस मांगा था एंड जो अभी सर बताएंगे हमें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें जो घबराहट है केवल छात्रों के प्रति, जिन्होंने जो अनशन पे बैठे, जिन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तो एक ऑर्गेनिक मूवमेंट थी, समझ लीजिए। और सरकारें अक्सर चाहती हैं, और ये मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, अक्सर सरकारें चाहती हैं कि किसी तरीके से कोई डिसेंट नहीं हो। तो इन्होंने कुछ आश्वासन दिए होंगे, नड्डा साहब ने कुछ माना बारे में तो मुझे मालूम नहीं, ना मैं जाना चाहता हूं कि ना हमने कुछ उसमें कोई पार्ट लिया। लेकिन जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि भाई कानून के आधार पे हम आपकी मदद करेंगे, और जरूर मदद करेंगे, और हम करेंगे। तो इसको सामने रखते हुए मैंने कहा कि जहां जहां भी हिंदुस्तान में, बिहार में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, जहां जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहां जहां छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहां हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा, कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वहां कुछ हमारे वकील खड़े हो सकें। तो इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर विड्रॉ हो। और मैंने कहा है कि हम एक ये सीजेपी ढांचा बनाएगी कि किस जगह पे क्या हुआ है, किस छात्र को, किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहां कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूंगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, अपनी ओर से 1 करोड़ रिपोर्ट दूंगा, और साथ में ये आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें, ताकि हम हर जगह जहां जहां भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहां जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे, तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में। तो ये शुरुआत हमने की है। ठीक है, वो फंड केवल इसीलिए खर्च होएगा, अगर मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है, उसमें 1 रुपया भी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, केवल उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, और जो गलत तरीके से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और जो भी फंड इसमें आएगा उसी लिए होगा, किसी और उसका दुरुपयोग नहीं होगा। एंड उसका जो डिसबर्समेंट है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये खुद करेंगे। मैंने तो कंट्रीब्यूशन देना है, वो मैंने ऐलान कर दिया, वो मैं कंट्रीब्यूशन देगा, बाकी इनके जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी मैं एक बात आपको बता दूं जो मेरी जानकारी में आई है कि दिल्ली की पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन के साथ जो भी वहां आया है उसको वो टारगेट करेगी।
और प्रयास करेगी कि किसी तरीके से उसके परिवार को, उनके लोगों को हैरेस किया जाए। और इसमें भी वो हो सकता है कि कोई कम्युनल दृष्टिकोण के साथ। देखिए, ये जो इनकी प्रोटेस्ट है कि मैं तो बाहर का आदमी हूं, मैं तो इनके साथ प्रोटेस्ट में तो जुड़ा नहीं, ना मैं कभी गया, लेकिन जो मेरी सोच है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, ये हर जगह यही करेंगे, तो इनका तो मकसद ही है। तो वो हिंदुस्तान में हमें होने नहीं देना, छात्रों को होने नहीं देना, प्रोटेस्टर्स को होने नहीं देना। ये अबव क्लास, अबव क्रीड, अबव रिलीजन, ये मूवमेंट है हिंदुस्तान के सुधार के लिए, और सुधार तभी होगा अगर ये सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग इकट्ठा होकर इसमें शामिल होंगे। मेरा तो रोल रही है कि मैं इसको बाहर से कानूनी तौर पे सपोर्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाइए, क्वेश्चंस को रोके। ऑन बिहाफ ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं। सर का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमेशा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, एक्टिविस्ट का राइट हो, डिसेंटर्स का राइट हो, छात्रों का राइट, सर हमेशा वो सारे केसेस लड़े हैं कोर्ट में। एंड हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है जब सर जैसे लोग हमारे साथ खड़े, युवाओं के साथ खड़े। तहे दिल से शुक्रिया सर। एंड इसी में आपको हम लोग एक स्टेटस अपडेट भी देना चाहते हैं कि पूरे देश भर में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में पुलिस बहुत ब्रूटल तरीके से क्रैकडाउन भी कर रही है एंड लीगल मुकदमे भी लगा रहे हैं छात्रों के खिलाफ। तो आइडिया अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग इनवाइट करेंगे लॉयर्स को, जो पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स हैं, जो इस चीज़ों पे काम कर सकते हैं, युवाओं के साथ खड़े रह सकते हैं। ऐसे लॉयर्स को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग के साथ जुड़े एंड एक तरह से ये बड़ा हमारा एक लीगल नेटवर्क बने, थ्रू आउट द कंट्री हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करे। क्योंकि फिर युवाओं के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर सरकार उनको अनफेयर तरीके से टारगेट करती है तो फिर ये लॉयर्स हैं जो उनके साथ खड़े रहेंगे। बाकी एज अ पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी एंड जो सर है, सीनियर एडवोकेट है, और भी कई सारे लोग हैं, सब उनके साथ खड़े हैं। तो जो भी अभी छात्र ऐसे टारगेट हो रहे हैं देश भर में, प्लीज होल्ड ऑन, वी आर विद यू। हम लोग पूरा लॉयर्स के साथ टच में है, कोऑर्डिनेशन में है एंड एंड तक इस चीज को हम लोग पहुंचाएंगे। अभी मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं। हम लोगों ने मन से, जब पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ था 20 तारीख को, हम लोगों ने एक प्रण लिया था कि ये जो पुलिस वाले हैं और ऐसे जो आरएएफ वाले हैं जिन्होंने सीधा सीधा इस इंटेंशन से वहां पे उस दिन आए थे कि हम बच्चों का सर फोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन करेंगे, लड़कियों का मोलेस्टेशन करेंगे, ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम लोग एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अगर लगे तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे एंड जब टाइम आएगा उनका जवाबदेही भी फिक्स करेंगे। तो वो प्रण लिया था एंड हम लोग उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने हमारे वेबसाइट पे cockroachjanta.org/साक्षी नाम का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है। इस पे लोग जा सकते हैं जिनके पास भी पिक्चर्स है और वीडियोस है उनके साथ हो रहे ब्रुटैलिटी का उस दिन के रिलेटेड या उसके बाद भी। अगर ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है जो एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं, वो यहाँ जाए और यहाँ जाके अपलोड करे, अपना स्टोरी लिखे। हमारा जो टीम है वो टीम उसको छाटेगा एंड आपसे इन फ्यूचर टच में रहेगा एंड इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी तय करने का पुलिस वालों का। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, cockroachjanta.org/साक्षी SAAKSHI। ये हम लोग बहुत मतलब कुछ टाइम में ही हम लोग अपने सारे ऑफिशियल हैंडल्स में डाल देंगे। एंड सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऐसे वीडियोस और
पिक्चर्स है, तो यहाँ पे जाइए, उस पे क्लियर ट्यूटोरियल दे रखा है कि कैसे यूज करना है। उसको यूज करके आप इस प्रयास में आप सहयोग दीजिए। अब आशुतोष एक अपील करेंगे। 25 जुलाई को जब जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से हमारी 3rd राउंड की बातचीत हुई थी, तो उसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि जितनी भी FIRs प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है, जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर, वो सभी FIRs विड्रॉ की जाएंगी। और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई FIR फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। इस एग्रीमेंट का एक रिटर्न ड्राफ्ट भी हमने जेपी नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को सबमिट किया था, और इस बात पर सहमति बनी थी कि कल मंगलवार तक सरकार की तरफ से रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमसे शेयर कर दी जाएगी, और दोनों साइड के लॉयर्स अलाइन करने के बाद दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमें जल्द से जल्द शेयर करे। आप जेपी नड्डा जी की जो बात कही गई है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। उनकी जो ट्वीट है इस विषय में उसको भी रेफर कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी FIRs फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी।